Yes, am I audible, student? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, see. Now एकदम clear आवाज है ना? कोई problem नहीं? Online student, is it coming clearly? Yes, ma'am. Yes. Yes, for all the online students. My voice is audible to all of you? Yeah, Yes, ma'am. It's ma'am. audible. Okay, beta, okay. See, fourth chapter, we have completed the third chapter actually. The last point which we have seen, that was this one, na? Demand का one the okay. So this part is over now. ये सब तुम्हारा objective वगैरह रहेगा. And now we are coming towards the chapter number 4, elasticity of demand. This also you have studied in the first standard. Yes, student. ये भी पढ़ा है तुम लोगों ने? Yes or no? Yes. Online student, what happened? So right, na? Okay. See what we have to see in this chapter. We have to see the meaning of elasticity, in the price elasticity of demand, income elasticity of demand, cross elasticity of demand, promotional elasticity of demand. These all four types we have already studied in the first time. बराबर है? ये चारों तुम लोगों ने पढ़े हैं. उसके बाद में relation between price elasticity of demand and the revenue concept ये पढ़ा है? ये शायद नहीं पढ़ा रहेगा. Then the importance of elasticity of demand. See, from the examination point of view, as let's say like whether you examine offline or online. If it is online and totally objective based, then what we have to study, you just have to study what is price, income, cross and proportion. नहीं पढ़ना है तुम लोगों को. ठीक है? उनका क्या फॉर्मूला रहेगा, किसके ऊपर क्या डिपेंड रहता है, this will only you have to study. अगर ये ऑफलाइन में पूरा थ्योरेटिकल वे में आता है, then कैसे क्वेश्चन आएंगे? Then the question will be what are the types of elasticity of demand. Okay, so अगर वहाँ पे specifically price को पूछा जाएगा, what are the types of price elasticity of demand? So at that time you have to show here relatively elastic, क्या कर रहे हैं? Relatively elastic, objective elastic. Okay, so that way you supposed to write the answer. Then again theoretical में they will going to ask you the question on the relationship between price elasticity of demand and the difference. लेकिन जितना ज़्यादा आता है, जो इसमें से जो ज़्यादा important है, this is price elasticity of demand. तो बड़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा. ठीक है? केवल इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी and if it is coming for the 7 or 8 mark question answer, even for that also. तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव इलास्टिक मतलब क्या होता है, रिलेटिव इलास्टिक मतलब क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. Then you can write all this point. Okay, so just recall this point and tell me here what you mean by the elasticity of demand. Yes. क्या याद आ रहा है तुम लोग को? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या रहेगा? See, everybody know what is demand. Yes, सबको पता है डिमांड क्या होता है. But when I am adding the word elasticity, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? क्या लगता है तुम लोगों को? अपने मन से कोई मुझे क्या डेफिनेशन देनी चाहिए? What do you all think? इलास्टिसिटी मतलब क्या रहेगा? चेंजेस. ठीक है, चेंजेस मतलब कितना ज्यादा चेंज होता है उसके ऊपर. देखो जैसे एग्जांपल, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 5% से कम होता है, सपोज इफ द प्राइस इज रेड्यूस्ड बाय 5%, तो तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे एज अ सेलर कि डिमांड भी वहां पे 5% होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए. लेकिन कभी कभार क्या होता है, इट विल से 5% ही रहेगा या फिर उससे ज्यादा भी रहेगा या फिर 5% से कम भी रहेगा या फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा. Isn't it? So on that basis we are deciding whether the demand is elastic, inelastic or perfectly elastic or perfectly inelastic. Okay, so यहाँ पे तुम्हें किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है? What is the proportionate change? ठीक है, जो चेंज होता है, जैसे यहाँ पे मैं तुम लोगों को प्राइस के बारे में बात कर रही हूँ, और if I have to say from the income point of view, तो अगर कंज्यूमर का सबको पता है कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा. उसके पास पैसा है करके ये तो मानता है कमोडिटी. ठीक है, तो कंज्यूमर का इनकम कितना परसेंटेज से बढ़ता है, इसकी वजह से डिमांड कितना परसेंटेज से बढ़ता है. So that is all coming here. Income elasticity.
इलास्टिसिटी अगर ये वर्ड आता है तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। मैम Question- वॉइस हेलो what happens to that? मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और वो स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। Okay, now is it coming? यस मैम। Okay, Yes, okay. ma'am. Yes, ma'am. तो जो मैंने अभी तक समझा कुछ समझा या नहीं समझा? Yes? नहीं समझा। नहीं समझा? No. Okay. See, as we are talking about the elasticity of demand, okay? So when this word is coming elasticity, so at that time you have to give more focus on changes in demand. So changes in demand can be for anything like because of change in price, because of change in income, because of change in the advertisement strategy, isn't it? Because of this reason we may going to have the change in demand. एक example के form में अगर बताना है कि अगर प्राइस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है. So when the demand changes because of the price, we are calling it as a price elasticity of demand. लेकिन उसको elasticity ये word में क्यों यूज कर रही हूँ? Because वहां पे sometime what happen when I am reducing the price by 5%, so there have to see that what is the percent of change in demand. अगर 5% से प्राइस कम होता है तो वहां पे डिमांड शायद 5% ही बढ़ेगा या फिर डिमांड 5% ही कम होगा या फिर डिमांड 5% से ज्यादा बढ़ेगा या फिर कुछ भी नहीं बढ़ेगा. ओके, सो ऑन दैट बेसिस वी आर डिसाइडिंग द इलास्टिसिटी. सो इलास्टिसिटी का मीनिंग ये है कि वहां पे तुम्हें प्रोपोर्शन देखना है कि डिमांड और जिस फैक्टर की वजह से प्राइस कम हुआ है या फिर डिमांड इफेक्ट हुआ है उन दोनों के बीच में कितना प्रोपोर्शन है. ओके, सो उसको कहा जाता है इलास्टिसिटी. इज दिस क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट, इज दिस क्लियर? यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सी मैं जस्ट रीड करती हूँ. देखो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन ऑल अबाउट द डिमांड. कि डिमांड क्या है उसके बारे में हम लोगों ने टोटली स्टडी किया था. सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव सीन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन प्राइस एंड अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. Elasticity of demand help us to estimate the magnitude of change in demand with respect to change in any of the determinants of demand. This information would help a firm in decision making with respect to pricing, promotion and production policies. Okay, तो यहाँ पे क्यों importance दिया गया elasticity में? See, economics, why do we study economics? Because we are able to understand the market situation. कि मार्केट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा, मार्केट में क्या वे का बिहेवियर रहता है, तो उसके वजह से हम लोग क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं उसको सोल्यूशन लेके आने के लिए. ठीक है. So therefore when we say about the elasticity, so the elasticity will going to help you in the decision making related to the price or we can say advertisement or we can say अगर income जैसे कि 7th पे स्केल, जैसे अभी 7th पे कमीशन चालू है. ठीक है, नेक्स्ट आएगा तभी 8th पे कमीशन आएगा तो ऑब्वियसली वहां पे लोगों का सैलरी बढ़ेगा. तो सैलरी इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, so that we will be able to understand with the help of elasticity of demand concept. Is this clear? Now next we will start with the meaning of elasticity. Elasticity of a demand for a commodity measure the proportionate or we can say the percentage change in the quantity demanded due to proportionate or we can say percentage change in determinants of demand here. So determinants of demand अगर आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो determinants of demand बोला है तो और क्या confusion है. So determinants of demand it means what we can say price, income, then again your advertisement and then again you can say the prices of other commodity. Okay, so ये यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट ही कंसिडर करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. Such determinants may be price of the commodity. Okay, they have already given here price of the commodity, consumers income, prices of related commodity, promotional spending on any other or any other determinants. Okay, in general term we can define elasticity as the percentage change in a variable to the percentage change in another variable. देखो आपको इलास्टिसिटी ऐसे नहीं आएगा बल्कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ये जनरली नहीं पूछा जाता है. आपको अगर एग्जाम में आएगा सो दे विल गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दिस वे ओनली द क्वेश्चन विल बी कमिंग. ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने एक जनरल वे में यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है
percentage change in one variable to the percentage change in another variable. Okay, this is what the elasticity. Then again, they have given you the formula also. Now we will not look into this. We will directly come towards your main point, that is the general concept of elasticity given above can be used to explain following elasticity of demand. तुम लोगों को जो syllabus में पढ़ना है, that is only 4 types of elasticity here. These are the price elasticity, income elasticity, cross elasticity and promotional elasticity. ठीक है, यही पढ़ना है. Now we will start with the price elasticity of demand. Okay, see, this measures the responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in its price. The price elasticity of demand is given by the percentage change in the quantity demanded for the commodity divided by the percentage change in its price, keeping constant all other variable in the demand function. So here we are totally focusing on the price. देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड के ऊपर अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, लेकिन जब हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी की बात करेंगे तभी हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे कि जो बाकी फैक्टर्स है, जैसे कि इनकम है, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है, या फिर कॉम्प्लीमेंटरी कमोडिटी है, या फिर जो तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है, दैट वी आर अज्यूमिंग इट विल बी रिमेन कांस्टेंट ओनली. ठीक है, व्हाट आर वी अज्यूमिंग हियर कि बाकी जो भी फैक्टर है प्राइस के अलावा वो सब कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है. जहां पे चेंज होने वाला है इट विल बी ओनली द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. ओके, देन सी, तो उसको अगर मुझे फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है यहाँ पे, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, ईपी. यहाँ पे ईपी क्या इंडिकेट करा, ई स्टैंड फॉर योर इलास्टिसिटी एंड पी स्टैंड फॉर योर प्राइस. ओके, सो दिस इज प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला. ठीक है, इसका ये यहाँ पे प्रोपोर्शन हम लोगों ने दिखा है. अगर मुझे यही बात इनकम इलास्टिसिटी की कहनी है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में कहनी है, तो मैं वहां पे कैसे ये फॉर्मूला बनाऊंगी, बताओ मुझे. एनी गेसेस? देखो, इनकम में भी हम लोग डिमांड की बात करेंगे कि डिमांड में क्या चेंज हो रहा है करके. इनकम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे percentage change in quantity demanded to the percentage change in the relevant variable. So instead of that, when I have to say about the income elasticity of demand, तभी मैं वहां पे क्या करूंगी, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in income of the consumer. That way I am going to write here. Okay, अगर मुझे यही बात प्रमोशनल का मीनिंग क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हम लोग हमारे कमोडिटी को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब वहां पे लोगों के सामने वो लेके आ रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली इट मींस वी आर स्पेंडिंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट. ओके, तो उसके लिए मैं कैसे फॉर्मूला क्रिएट करूंगी, बताओ मुझे. आप लोग बनाओ, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे. प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट हियर फॉर द प्रमोशनल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिखो या फिर प्रमोशनल एक्सपेंडिचर लिखो. ठीक है, जितना हम लोग ज्यादा खर्चा करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, उतना हमारा डिमांड बढ़ेगा. यू ऑल एग्री विद दिस? यस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं क्या स्क्रीन बंद हुआ, नहीं किया था मैंने चालू, लेकिन यहाँ पे आता है ना, चालू है रिकॉर्डिंग इज सेट. ओके, इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट करना है? हाँ, बिकॉज है ना, Yes, तुम लोगों को ma'am. जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना, वो ऐसे ही आएंगे. इसके ऊपर आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा. ओके, सो वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे, बस आपको क्लियर वहाँ पे रखना है कि अगर प्रमोशनल है तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे, इनकम है तो इनकम के बारे में, लेकिन डिमांड चेंज यहाँ पे जो है ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट विल बी सेम एवरीवेयर. जस्ट उसको हम लोग, वो हमें किस बारे में पूछ रहे हैं, इनकम के बारे में है, प्राइस के बारे में, तो उसका चेंज हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर के साइड में रख देंगे. इज दिस क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान में रखना है. इवन सपोज इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग फॉर द थियोरेटिकल वे, 7 और 8 मार्क्स के लिए अगर आते हैं, तो जस्ट अगर तुम्हारा फॉर्मूला करेक्ट रहेगा यहाँ पे, तो उसके लिए आपको 1 मार्क दिया जाता है. ठीक है, 1 मार्क तो कंफर्म रहेगा. तो जैसे 4 टाइप से, तो 4 टाइप के लिए आपको 4 मार्क्स वहां पे मिल जाएंगे.
और उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दोगे तो वहां पे दो मार्क ऐसे करके ऐड होता जाएगा, एक दो मार्क्स करके. ओके, सी नाउ सिंस द डिमांड को फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज डाउनवर्ड स्लोपिंग due to the inverse relationship between price and quantity demanded of commodity, the value of the price elasticity of demand will always negative. However, while interpreting the price elasticity of demand, its negative sign is ignored or omitted. Okay, so यहाँ पे उन्होंने positively change हो रहा है, negatively change हो रहा है, उसको उन्होंने यहाँ पे importance दिया नहीं. See, now measurement of price elasticity. यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आई डोंट थिंक सो ये आएगा कि कैसे मेजरमेंट करेंगे. पॉइंट इलास्टिसिटी के बेस के ऊपर आपको केस स्टडी आ सकता है, केस स्टडी के फॉर्म में आएगा. आपको मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या है वो नहीं पूछा जाएगा. ओके, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड. तो यहाँ पे पहला मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी. Point price elasticity of demand measure elasticity of demand at a point on the demand curve. It is calculated by the following formula. So here EP stand for, what is the EP meaning? What is the EP full form? Elasticity of price. Price elasticity. Very good. Okay. So when I'm using this triangle, so that we are saying as a delta Q upon Q. So यही जो triangle का meaning है वो क्या है यहाँ पे? Delta का meaning क्या है यहाँ पे? हम लोग चेंजेस बता रहे, नहीं चेंजेस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्यू मतलब जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो. ओके, एंड व्हेन आई एम सेइंग डेल्टा पी मतलब क्या? चेंज इन प्राइस एंड डिवाइडेड बाय ओनली पी मतलब जो ओरिजिनल प्राइस रहेगा वो रहेगा. लेकिन ये आपको केस स्टडी में आएगा स्टूडेंट, ये अभी भी ध्यान में रखना. ये आपको पूरा डायग्राम वगैरह बाहर करने की जरूरत नहीं है. दिस विल बी कमिंग इन द केस स्टडी. तो देखो यहाँ पे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन से कि मतलब ये तुम लोगों का आता है ना, मतलब डिवाइड रहेगा तो बाद में हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते करके वो. ओके, तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को डायरेक्टली एग्जांपल दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. सी, पॉइंट ए, अगर तुम्हें पॉइंट ए का इलास्टिसिटी जानना है तो क्या रहेगा, पॉइंट बी का इलास्टिसिटी जानना है तो व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी. सी, example है the concept of point elasticity is illustrated by the following example which gives the price and quantity demanded at two different points on the demand curve. So हमें दो पॉइंट के यहाँ पे इलास्टिसिटी निकालनी है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, सो पॉइंट ए पे प्राइस कितना है 10 है और डिमांड कितना है, हाउ मच इज द डिमांड एट पॉइंट ए 50. 50. तो अगर हम लोग फॉर्मूला की तरफ देखेंगे, जैसे कि किधर है ये, एक मिनट है रुको. ओके, इफ यू विल गोइंग टू, दिख रहा है उधर बराबर, मैंने ये यूज किया है स्पॉटलाइट. अच्छा, क्यों नहीं आ रहा है? आता है ना ऐसे एक्चुअली, वो इधर आ रहा है लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाना है, नहीं आ रहा है. ड्रॉ कर दूं, लेकिन ड्रॉ में एरेज करना पड़ता है एक्चुअली इसके लिए. ठीक है, सी हियर यू कैन सी द फॉर्मूला. यहाँ पे देखो हम लोग पॉइंट ए का इलास्टिसिटी है वो मेजर कर रहे हैं. ओके, सो पॉइंट ए का जो फॉर्मूला था लाइक डेल्टा क्यू अपॉन क्यू देन अगेन डेल्टा पी अपॉन पी, तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यू कैन से यू विल बी गेटिंग द आंसर -1.2. अभी आप लोग मुझे बताओ ये नेगेटिव में है तो यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, इट विल बी इन इलास्टिक में. ओके, ये किसने किया, ये मैंने ही किया लगता है. ओके, ये क्यों नहीं हो रहा है?
ओके ठीक है. द नेक्स्ट वन हियर आर्क इलास्टिसिटी. आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है? Point elasticity method is used to find out a change in one variable due to small change in the other variable, while arc elasticity is used to find out change in one variable due to relatively large change in other variable. लेकिन arc elasticity के लिए फॉर्मूला तो उन्होंने एकदम कॉम्प्लिकेटेड वाला दिया हुआ है. एंड दिस इज द ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट भी एक है. ये पढ़ना है हम लोग, अदरवाइज केस स्टडी के टाइम पे देख लेंगे आर्क इलास्टिसिटी. आई थिंक आई विल टीच यू व्हाइल व्हेन आई गोइंग टू एक्सप्लेन विद द केस स्टडी. उसी टाइम के लिए बेटर रहेगा. टाइम हो गया क्या अपना? यार इधर बहुत डिफिकल्ट होता है मुझे ये. ओके कितना टाइम हुआ बराबर? 8:45 हो गया. ये ना कोई स्क्रीनशॉट लेके रखो. ये जो पार्टिसिपेंट है ना उनका screenshot. और तुम लोगों का अटेंडेंस ठीक है. मुझे कोई एक व्हाट्सएप पे भेजो. ये पूरा ये स्क्रीनशॉट भी और तुम लोगों का अटेंडेंस भी भेजो. ओके सी द नेक्स्ट वन दैट वी हैव टू स्टार्ट हियर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी. ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन ये टाइम पे भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ये एक ही क्वेश्चन तुम लोगों को ऑलमोस्ट 15 मार्क के लिए आ सकता है. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे पूरे 4-5 डायग्राम रहेंगे तो डायग्राम के हिसाब से मार्क्स रहेंगे. और ये बहुत इजी है. थोड़ा टेंशन लो, उल्टा खुश हो जाओ कि हाँ बाबा ये तो इजी वाला आ जाएगा करके. लेकिन इसके अंदर जो तुम लोग हेडिंग दे रहे हो, जैसे कि अगर वहां पे इनइलास्टिक बता रहे हो और डायग्राम कुछ गलत ही दिखा रहे हो तो वहां पे पूरा रॉन्ग किया जाएगा. तो व्हाटएवर हेडिंग यू आर गिविंग अकॉर्डिंगली ओनली यू हैव टू मेक द डायग्राम. अगर तुम लोग जस्ट वहां पे एक्सप्लेनेशन भी नहीं दोगे, जस्ट हेडिंग लिखोगे और डायग्राम बना के रखोगे, उसके लिए 15 में से आपको 8 या 9 मार्क्स मिल जाएंगे. तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाती हूँ स्टूडेंट. लेकिन अभी के लिए बता के रख रही हूँ कि इसमें डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके तुम लोग अपने वर्ड में भी लिख पाओगे वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, ये डिमांड को क्या इंडिकेट कर रहा है करके. दैट को आल्सो यू कैन कैलकुलेट. ओके तो एक्सप्लेनेशन क्या देना है, कैसे सिंपल वे में देना है, डायग्राम को कैसे सिंपल वे में याद रखना है, दैट आई विल गोइंग टू टीच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट. yes or no स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके Yes, तुम ma'am. लोगों के अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट लिया है हम लोगों ने और तुम लोगों को अटेंडेंस दिया जाएगा. ये तेजस को अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा है इसका इमेज. ओके चलो एंड द लेक्चर. यस स्टूडेंट. Yes, ma'am. Okay student, bye. And try to take your second vaccine so that you can come to the college. Okay, bye student.